नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कारंजा प्रोजेक्ट में जमीन खोने वाले किसानों ने किया प्रदर्शन। कलबुर्गी में मादिगा समाज द्वारा प्रदर्शन कर रास्ता रोका गया। एचडीके ने 1 महीने में जर्जर सरकारी स्कूल भवनों की मरम्मत नहीं कराने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उदयपुर टेलर मर्डर, वकीलों समेत उग्र भीड़ ने जयपुर कोर्ट में हत्यारोपियों पर किया हमला। कोलकाता पुलिस ने नुपुर शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। उदयपुर मर्डर, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने पीड़ित परिजनों को 1 करोड़ की मदद का किया ऐलान। अब समाचार विस्तार से। कारंजा प्रोजेक्ट में जमीन खोने वाले किसानों ने आज शहर के अंबेडकर चौक के सम्मुख धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि सरकार कारंजा में जमीन खोने वाले सभी किसानों को सामान्य परिहार दे। इस अवसर पर किसानों ने मीडिया से बात की। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಇವತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ 30 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಇಕ್ಕ್ಯಾರ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಡೇರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ। 30 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಡ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಹೊಂಟಾರ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ। ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀರಾವರಿ ಮಂತ್ರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಏನು ಬೇರೆ ಇದ್ರಾಗೇನೋ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಏನೇ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ಯದ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ, ನೀರಾವರಿ ಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಇವ್ರು ಏನೂ ಹೋಗ್ಯದ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕಳಕಳಿ ವಹಿಸ್ತಲ್ಲ। ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಈಗ ನಾವು ಸತತ ಹೋರಾಟ ಏನಂದ್ರಿಂದ ಮಾಡಿ ನಾವು 70 ದಿನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟರು, ವಿಧಾನಸೌಧ 3ನೇ ಮಡಿಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಅಂತ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು। ಆಮೇಲೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ। ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಮತ್ತು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಿದ್ದಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೂ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ। ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿನೂ ಹೋಗಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಇವಾಗ ಮತ್ತು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಾರೆ, ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಾರೆ। ಕಾರಂಜಿ ಸಂತರ್ಥ ವಿಷಯ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ಅಂತಾರೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು। ಅದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ। ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಮಂತ್ರಿ ಇದೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಇದ್ದರು, ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಸಂತರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಕೊಡೋ ಅಂದರೆ ಭೇಟಿ ಆದರೆ ಹೇಳಿದ್ರು। ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿಂದ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತವೆ। ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿ ಶೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ। ಈಗ ಕಾರಂಜಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದವರು ಇವರೇನಂದ್ರಿಂದ ಅದೇನು ಭಾಳ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ರೈತರಿಗೆ ಶೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ। ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾಗ್ತಾ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ನಾವಿಂದ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ತೋಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ನಾವಿಂದ ಸತತ ಹೋರಾಡಿ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿ ನಾವಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕದಲೋದಿಲ್ಲ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಧೋಖ ಆಗ್ಯದ, ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಂದ ಧೋಖ ಆಗ್ಯದ। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು, BJP ದಳ ಇವು 3 ಸರ್ಕಾರ, 3ರಿಂದ ನಮಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಂದ ಧೋಖಾ ಬಜಿದಾಗಾರ। ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗಿಂದ ಭಾಳ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ। ಇವತ್ತು ಅದೇ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಫುಲ್ ನಡೆದದ ಅಲ್ಲಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನೋಡೋದಿಲ್ಲ। ಎಷ್ಟು ಜನ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ KDP ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಸರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ। ಇವತ್ತಿಂದ ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್ ಇದ್ದರು 2 ವರ್ಷ, ಅವ್ರೇನು ಮನವಿ ಕೊಡ್ಕೋತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾರೂ ಇವತ್ತಿಂದ ಕೇಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ। ಇವರೆಲ್ಲ ಇದಾದ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಭಗವಂತ ಖೂಬಾಗ್ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ನೋಡಾಕ್ತಾ ಇರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು, 2-3 ಸಲ ಸಭೆ ಗೊತ್ತದ ಅವ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಗೊತ್ತದ। ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಈ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತೊಗೊಂಬರಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರನ್ನೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಕೊನೆ ಹೋರಾಟ, ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾವಿಂದ ನಿರ್ಣಯ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆವು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದಮೇಲೆ 75 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಈ ಬಡತನದಿಂದ ನಿರ್ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಂದ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ। ಇವರಿಂದ ಆಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಅಯೋಗ್ಯರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವಿಂದ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಯ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆವು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಅನ್ನದಾತ ಅಂತಾರೆ, ಅನ್ನದಾತ ಬೀದಿ ಪಾಲ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ। ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಏನು ಕಾನೂನವ 2013 ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅವ, ಆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ತಿಲ್ಲ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿನೇ ಇಲ್ಲಿ। ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ? ಒಂದು ಮೊದಲಿಂದ ನಾವು ಸತ್ತ ದಿನ ಹೋರಾಡ್ಕೊಂತೇವೆ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದರು, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿರ್ಣಯ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು। ಇವತ್ತು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿನೇ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಫೀಸ್ದಾಗ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರಂಜಿ ಮುಳುಗಡೆ ಭೂಮಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಭಾಳ ಶೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ। ಒಂದೂ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಮೀನು ನಿಂತಾವೆ, ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ। ಈ ಕಾರಂಜದವರು
2016 ಭೂಮಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ 16ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿ ಸುಣ್ಣ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಾರ. ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬರ್ತದೆ, ಇದೊಂದು ಕಾನೂನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬರೋಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. ಕಾರ್ಯದಾಗ ಹೋದವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎರಡು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದೆವು. ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಪುರ್ 14 लाख, ನಿಡ್ವಂತಿ 4 लाख, ಬೊಂಬಳಿ 3 लाख, ಮತ್ತು ರೇಕುಳಿಗೆ 6 लाख, ಮತ್ತು ವಾಸನಡಿ 6 लाख, ರಂಜೋಳ್ಗೆ 6 लाख, ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಚಂದ್ರಬಂದಿಗೆ 4 लाख ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇವರು. ಅವಾಗ 2000 ಪೈಲಾ ಡ್ಯಾಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 3000 ಈಕ್ವಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರಣ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಮತ್ತು ಈಗ ಬಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏನು ಸುಣ್ಣ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬೆಣ್ಣ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರದಾಗ ಇರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಉಳಿದು ಸಾಯ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ಬೇಕು. ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರದ. ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಪ್ಪ. ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋದು. ಇದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳರ, ಇವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಶೆಯಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಬೇಡ್ಕೊತೀವಿ. मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, एक रेट क्यों? जो अदालत को ऐसा करते उसको ज़्यादा दे सकते, जो नहीं गए उनको कुछ भी नहीं दे सकते। ज़मीन उनका भी लिए, ज़मीन इनका भी लिए, दोनों ही परेशान है। 28 गांव के लोग जो है ना परेशान है। उसके बारे में जो है ना कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसको पूछे थे? हाँ आपके ऊपर अन्याय हुआ, अब हम देना पड़ता, देते। पूरे बिदर के लीडर हैं, बिदर के ऑफिसर हैं, पूरे जो है ना असेंबली में बैठ के जो है ना वादा करे सीएम और इरिगेशन मिनिस्टर मिलके हम बिल्कुल दे से बोल के। आज तक कुछ एक पैसे का जो है ना एक स्टेटमेंट नहीं दिया उसके बारे में। अरे भाई हमारे पास जमीन ले रहे, तुम जमीन किसको दे रहे? नीचे वालों को दे रहे। उनको जो है ना एक बार दे के जो है ना क्या खत्म हो गया उनका। हमारे को जैसे एक बार देने के बाद खत्म हो गया बोले तो उनको भी खत्म करो। उनको जिंदगी भर पालते, हमारे को जिंदगी भर परेशान करते हैं। ये कौन सा दोनों तरीका है? ये कौन सा न्याय है तुम्हारा? बताओ हमारे को। ये इसलिए जो है ना मैं पूछ रहा हूँ, इनको जो भी कानून जो है ना इनको होना है। रातों रात जो है ना इनका डीए बढ़ा लेते, टीए बढ़ा लेते, इनका तनख्वाह बढ़ा लेते, इनको जो है ना वो कानून कर लेते। वो कारंजा को बोलते कानून है। ये हमारा ज़मीन हमसे लेने के बाद कौन सा कानून तुम्हारे पास है? हम जो है ना तय करते हो कानून का, तुम तय करने वाला नहीं है। हमारा रेट हम तय करते हैं, तुम कौन है तय करने वाले? इसलिए जो है ना हमसे राय मशवरा लेके ये करो। आज तक हमारे ऊपर बहुत अन्याय हो गया है। कलबुर्गी में मादिका समाज द्वारा जस्टिस ए.जे. सदाशिव आयोग को अमल में लाने की मांग में राज्य भर में रास्ता रोको आंदोलन किया गया। मांग की गई कि जल्द से जल्द आयोग को अमल किया जाए। राज्य और केंद्र सरकार इसे विलंब कर रही है। कलबुर्गी से मशहूद आलम की रिपोर्ट। ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಂದಾಕೃಷ್ಣ ಮಾಧರ್ ಅವರು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ 50ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ಮಾದಿಗ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎ.ಡಿ. ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತುರ್ತದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಸಿರಾದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಆಶ್ವಾಸನೆಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗ ವರದಿ ಜಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮೌನವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಇವತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಪೂರಕ ಈ ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜ
ಒಂದು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸೋಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ವರದಿಯಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಬೇಕಂತ ಇವತ್ತು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಮನವಿ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದಿಗರ ಒಂದು ನಾವೇನು ನಿರ್ಣಯ ತಗೋತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಹೆದರಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಮಾದಿಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮಾದಿಗರು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने राज्य सरकार को सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार के लिए 1 महीने का अल्टीमेटम दिया और चेतावनी दी है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो उनकी पार्टी जनता दल एस विरोध करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स और आंकड़ों का हवाला देते हुए कन्नड़ा में ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कुमारस्वामी ने यह जानने की कोशिश की, अगर स्कूल खराब स्थिति में है तो भारत विश्व गुरु कैसे बन सकता है। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में लाया गया। आरोपियों को एनआईए स्पेशल कोर्ट जयपुर में पेश किया गया। आरोपी रियाज, गौस मोहम्मद, मोहसिन और आसिफ को कड़ी सुरक्षा के घेरे में कोर्ट लाया गया था। एटीएस मुख्यालय से इन्हें एक साथ स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट परिसर में वकीलों ने जमकर नारेबाजी की। वकीलों के प्रदर्शन के दौरान फांसी की मांग भी की गई। खबरों के मुताबिक भीड़ ने जयपुर कोर्ट के बाहर दोनों आरोपियों पर हमला किया। कोलकाता पुलिस ने शनिवार को बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। पैगंबर मोहम्मद पर कथित विवादास्पद टिप्पणी के मामले में आरोपी नुपुर शर्मा लगातार चौथी बार पेश नहीं हुई। नुपुर शर्मा के कमेंट को लेकर पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में व्यापक हिंसा हुई थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को कहा कि वह अहमद स्ट्रीट और नारगेलडांगा पुलिस थानों के अधिकारियों की ओर से जारी समन पर उपस्थित नहीं हुई। पुलिस अधिकारी ने कहा, कई बार तलब किए जाने के बावजूद हमारे अधिकारियों के सामने पेश नहीं होने के बाद आज लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों थानों में से प्रत्येक ने उन्हें 2 बार तलब किया था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि अहमद स्ट्रीट और नारकेलडांगा पुलिस थानों ने पिछले महीने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें अलग अलग तलब किया था। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल के परिजनों से मुलाकात कर फंड रेजर के माध्यम से एकत्रित 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता परिजनों को देने की घोषणा की। उदयपुर के धान मंडी क्षेत्र में मंगलवार को दर्जी कन्हैयालाल की 2 लोगों ने चाकू से गला काटकर नृशंस हत्या कर दी थी और वारदात का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। उदयपुर के सेक्टर 14 स्थित दर्जी कन्हैयालाल के आवास पर परिजनों से मुलाकात और श्रद्धांजलि देने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मिश्रा ने कहा कि फंड रेजर के जरिए 1 करोड़ रुपए की राशि एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपए एकत्रित हुए और लोग अभी भी योगदान दे रहे हैं। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए
बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद फिर से समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के इंद्रवीर क्लब के सदस्यों के द्वारा नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर निधि सक्सेना को सर्वसम्मति से क्लब प्रेसिडेंट का पदभार सौंपा गया। श्रीमती दीपा रस्तोगी को क्लब सेक्रेटरी एवं श्रीमती नम्रता रस्तोगी को क्लब कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। नवनिर्वाचित क्लब प्रेसिडेंट डॉक्टर निधि सक्सेना ने कहा कि क्लब आगामी वर्ष में यथासंभव समाज सेवा के कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा। नई कार्यकारिणी ने अपने वर्ष की शुरुआत स्वास्थ्य कैंप लगाकर की।
इस कैंप में जरूरतमंद लोगों का पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। क्लब द्वारा फल, बिस्किट्स एवं जूस आदि भी वितरित किया गया। इस अवसर पर इनरवेल क्लब के सदस्यों द्वारा डॉक्टर सुधा सक्सेना, डॉक्टर निम्मी वार्ष्णेय एवं डॉक्टर संजय वार्ष्णेय एवं डॉक्टर शानेरब को चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद रविवार को पहली बार शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के विधायक आमने सामने होंगे। मौका होगा विधानसभा के स्पीकर के चुनाव का। इस चुनाव के दौरान दोनों ही गुट सदन के भीतर अपनी ताकत दिखाते नजर आएंगे। ये चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि महाअघाड़ी सरकार को सत्ता से बेदखल करने वाले एकनाथ शिंदे शुरू से ही अपने साथ 2/3 से ज्यादा विधायकों के होने का दावा कर रहे हैं। दक्षिण ईरान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने बताया कि शनिवार तड़के दक्षिणी ईरान में आए तेज भूकंप में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 19 लोग घायल हुए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपने प्रारंभिक माप को संशोधित करते हुए कहा कि शनिवार तड़के दक्षिण ईरान में 6.0 तीव्रता का तेज भूकंप आया। USGS ने कहा है कि भूकंप का केंद्र होर्मोजगन प्रांत के बंदरबास के दक्षिण पश्चिम में 100 किलोमीटर दूर था। अक्षय कुमार संग डेब्यू करेगी समंता तो रणबीर नहीं बल्कि रणवीर संग पहुंचेंगी आलिया भट्ट। अब समाचार खेल जगत की। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। टीम इंडिया की मार के बाद भी नहीं टूटा इंग्लैंड का आकड़, कोच ने दे डाली ये धमकी। अंत में समाचार बाजार के। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इस महीने में 5% बढ़ सकता है DA। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कारंजा प्रोजेक्ट में जमीन खोने वाले किसानों ने किया प्रदर्शन। कलबुर्गी में मादिगा समाज द्वारा प्रदर्शन कर रास्ता रोका गया। HDK ने 1 महीने में जर्जर सरकारी स्कूल भवनों की मरम्मत नहीं कराने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उदयपुर टेलर मर्डर, वकीलों समेत उग्र भीड़ ने जयपुर कोर्ट में हत्यारोपियों पर किया हमला। कोलकाता पुलिस ने नुपुर शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। उदयपुर मर्डर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने पीड़ित परिजनों को 1 करोड़ की मदद का किया ऐलान। KP न्यूज के 3 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।